Om Shanti and a very good evening to all of you. Welcome to the Sunday evening talk and also a good coincidence of International Women's Day. So hearty welcome to all of you. Brahma Kumaris are proud to arrange this International Women's Day program, and you might be aware that yesterday and today we organized a women's retreat, residential retreat, Happy Women, Happy Family. So we had a very nice retreat and around 40 empowered women participated in this retreat, and we are going to listen their beautiful experiences also, few experiences. So today's evening, before starting, we will start with a beautiful dance being performed by Nivedita, Kumari Nivedita. She is studying in KV school. Which class? Second class. I think we all should greet her and clap her, welcome her. She is practicing Kuchipudi since 1 year from Sitara Dance Institute, Lingampalli, and she will be performing on Aigiri Nandini. Nivedita Kumari, Nivedita. Aigiri Nandini Nandita Medini Vishwavinodini Nandanute Girivara Vindhya Shirodhini Vasini Vishnu Vilasini Jishnunute Bhagavati Heshiti Kanta Kutumbini Bhuri Kutumbini Bhuri Krite Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shailasute Varshini Durdhara Dharshini Durmukhamarshini Harsharate Tribhuvana Poshini Shankara Toshini Kalmashamoshini Gosharate Tanujani Roshini Divisutta Roshini Durmada Shoshini Sindhu Sute Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shailasute Jagadamba Madamba Kadamba Vana Priyavasini Asarate Shikari Shiromani Tunga Himalaya Shringa Nijalaya Madhyagate Madhu Madhure Madhu Kaita Bhaganjini Rasarate Jaya Jaya He Mahishasura Mardini Ramya Kapardini Shailasate शतखण्ड विखण्डित रुण्ड वितुण्डित शुण्ड गजाधिपते त्रिभुगज गण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निज भुज दण्ड निपातित खण्ड विपातित मुण्ड भटाधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते ऐरण दुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिभृते चतुर विचार धुरेण महाशिव दूत कृत प्रमथाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानव दूत कृतान्तमते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते शरणागत वैरि वधूवर वीर भराभयदाय करे त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधि शिरोधि कृतामल शूल करे दुमि दुमि
शैलसुते कृतिमात्र निराकृत धूम्रविलोचन धूम्रशते समर विशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीजलते शिव शिव शुम्भ निशुम्भ महाभवतर्पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते क्षण संग परिस्फुरदङ्गनटत्कटके कनकपिशङ्ग पृषत्कनिशङ्गरसत्कटशृङ्गः. Thank you very much, Kumari Nivedita. That's a beautiful song. And when you chant about the lyrics of the song, जय जय हे महिषासुरमर्दिनी, नारी की शक्ति के महत्व को बताते हुए नारी ने शिव शक्ति ने किया महिषासुर असुर का वध। और वो कैसे किया? शिव से शक्ति लेकर के, परमात्मा से शक्ति पा करके। कैसे? जय जय हे महिषासुरमर्दिनी। तो ये सिर्फ एक नारी की बात नहीं है, हर नारी घर में बहुत कुछ झेलती है, बहुत कुछ सहन करती है, लेकिन फिर भी चैलेंजेस को पार करते हुए शी विल बी द फाइनली द विनर। तो इसलिए आई थिंक एक क्लैप्स तो बनता है हर नारी के लिए। थैंक यू। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मिसेस Durga, who is a regular member of this Brahma Kumaris organization, and let me tell you, you don't believe, she is practicing this Raj Yoga meditation from the past 53 years, and it was not easy for her to really come regularly to this organization. She had to face so many problems, but now we will hear her experience relating to the health, how meditation helped to heal her health issue. So I would like to invite our senior mother, Mrs. Durga, and इनके पति भी डॉक्टर राधेश्याम जी हैं। अभी सभा में नहीं है, पर बहुत समर्पित भाव से यज्ञ की बहुत सहयोग देते रहते हैं। तो आइए। ओम शांति। आज का दिन स्वतः ही परमात्मा की याद दिलाता है कि माताएं कितनी शक्तिशाली हैं। तो सभी को हमारा नमन है। और सबसे पहली बात तो मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से कनेक्ट होकर के 20 मई 1968 की बात है, 1968। तो मेरे 7 ब्रदर्स हैं और मैं एक ही सिस्टर। तो मेरी माँ को लड़की नहीं जीती तो मेरे मामा के यहाँ ले गए। वहाँ 2 भाई, 9 भाई और मैं एक ही। तो सबको यही था कि, और मैं सबसे छोटी हूँ, मेरे से छोटा एक ही भाई। तो 16 साल में शादी कर दिए और 17 साल की मैं थी और 1 साल शादी को हुआ था, तभी हमारे बड़े भाई की डेथ हुई। और वो ओनली 30 इयर्स के थे और सबसे बड़े थे, लेकिन उन्होंने बहुत हमको भक्ति भावना में लगाया। इतनी छोटी उम्र में ही हमारे 7-8 गुरु बनवाए और रोज़ रात्रि में हम लोग भजन करके फिर सोते थे। तो ये संस्कार हमको उस टाइम पर बहुत मदद किए। जब उनकी डेथ हुई तो सारा टाइम रोना ही रोना, ऐसा लगता था कि ये क्या हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी फैमिली, इतना परिवार, उसके बीच में एकदम इतने सबसे पावरफुल आत्मा और ऐसा चले गई। तो मेरे चाचा की लड़की ज्ञान में जाते हुए 2 मास हुए थे और 3 मास पहले ही हैदराबाद में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से ये कुलदीप बहन जी और उनके परिवार वाले आए थे। तो जब हमारे पास घर पर आए उनको लेकर, हमारी चाचा की लड़की,
तो प्रैक्टिकल में ज्ञान सुना कि वो तुम्हारा क्या ले गए। शरीर भी तुम्हारे पास में ही था, परंतु उसमें से क्या चली गई जिसके कारण तुमको इतना दुख है। तो जीते जी तो हमने समझा नहीं था कि हमारा प्यार किससे है। शरीर से ही कर्मणा होती है तो शरीर से ही प्यार, लेकिन आत्मा का कोई पता नहीं। लेकिन गीता पढ़ते थे तो उसमें ये ज़रूर समझते थे कि आत्मा इसकी मालिक है और ये इंद्रियां हैं, लेकिन आत्मा एक चैतन्य शक्ति है, आत्मा की सूक्ष्म इंद्रियां मन बुद्धि संस्कार है, ये कुछ भी पता नहीं था। तो जब ये नॉलेज मिली तो उससे प्रैक्टिकल में ये समझे कि जो भी कुछ है हमारे साथ जाने वाला नहीं है, ये शरीर भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। और मुझे 4 बातें सबसे पहले बहुत खुशी मिली, ज्ञान सुन कर के एकदम जीवन बदल गया कि हम कोई मरने के बाद में कीड़ा मकोड़ा नहीं बनने वाले हैं। मनुष्य हैं तो मनुष्य ही जाकर जन्म लेंगे, क्योंकि आम का बीज डाले तो जाम तो लगने वाला नहीं है। तो ये एक निश्चय बहुत हेल्प किया कि हमारे कर्म ही हमारे साथ जाएंगे। तो यही सच्चा गीता का ज्ञान है। दूसरी बात, सृष्टि के आदि मध्यांत की नॉलेज कोई भी जगह पर करेक्ट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है किसी भी धर्म में, शास्त्र में। और किसी भी गुरु के पास जाते थे, 7-8 गुरु किए, उनको भी हम यही कहते थे कि भगवान मिल गया क्या, तो कहते थे पा रहे हैं। जब वो पा रहे हैं तो हमको भी पाने के लिए पीछे पीछे जाना पड़ेगा। तो पहली दफ़ा हमने जब ब्रह्मा कुमारियों से मिले तो सबसे पहले यही कहा कि आपको हम भगवान से मिलाते हैं। तो हमको सबसे बड़ी निश्चय और खुशी की बात ये हुई कि जिसको मिला है वही तो ऐसे बोलेंगे। तो वो एक पहले दिन ही ऐसा निश्चय बैठा। तो इतना बड़ा परिवार, इतना, और ससुराल में भी हस्बैंड भी अडॉप्टेड है, तो वहाँ पर भी 2 सास ससुर और यहाँ पर भी 2 परिवार, मम्मी पापा वगैरह। तो छोटेपन से ही ऐसा लगता था कि ऊपर ऊपर जी रहे हैं मस्त अपना, कोई बात की वो नहीं है। लेकिन जब ये नॉलेज मिली तो समझ में आया कि जीवन जीना किसको बोला जाता है, जीवन अपने लिए जीते हैं या औरों के लिए जीते हैं। तो जब ये ज्ञान मिला उसके बाद में ही 2 साल बाद मुझे परफोरेशन हो गया और पता ही नहीं चला डॉक्टरों को कि कैसे क्या बीमारी है। और आज से 40-45 साल पहले कोई इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं थे कि फटाफट एक्सरे कर ले, फटाफट पता चल जाए। तो मुझे ऐसे भासना आई कि एकदम तुम्हारा ऑपरेशन अभी नहीं होगा, दोपहर को होगा। तो मैंने बोला कि देखो मेरा ऑपरेशन अभी नहीं करना, दोपहर को होगा। बोले ऐसे कैसे, डॉक्टर सब तैयारी कर लिया सब कुछ। मैं बोली नहीं, मेरा ऑपरेशन अभी नहीं होगा। और सचमुच एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर ही नहीं आया। तो उसने बोला कि मैं दोपहर को आऊँगा। तो उस पीरियड में डॉक्टर को जो टाइम मिला तो उस टाइम पे एक्सरे निकालने के लिए ट्रॉली में मशीन को लाना पड़ता था। और मेरी ऐसी सिचुएशन थी कि हिला भी नहीं सकते थे, इतना पेन कि रोज़ रात को 11 बजे पैथेडिन का इंजेक्शन देते थे तो सोती थी। तो जब तीसरे दिन ऑपरेशन की ये बात आई और सवेरे मुझे लगा नहीं अभी नहीं करना है, तो एक्सरे कराने से क्लियर हो गया कि मुझे परफोरेशन है। नहीं तो वो समझ रहे थे अपेंडिक्स फट गई है, कुछ भी है, बहरहाल पेट खोल के देखेंगे। तो सोचिए कि कैसे बाबा ने हमको, भगवान ने मदद की। मुझे फर्स्ट टाइम ऐसे लगा। और 25 दिन हम हॉस्पिटल में थे, पकनी खाल होने से सब, लीवर में पस, कोलन में पस। फिर डॉक्टर ने बोला हो सकता कैंसर है। कैंसर हॉस्पिटल लेकर गए तो वहाँ मशीन खराब थी, सारे घर वाले रो रहे क्यों है, मेरा हिसाब किताब मैं चुप कर रही हूँ और मैं ठीक हो जाऊँगी। मेरे को अंदर से पक्की भासना है कि मुझे कुछ होने वाला नहीं है, ये तो मेरा हिसाब किताब आया है। क्योंकि अगर हम जिएंगे नहीं तो ज्ञान की पराकाष्ठा और मेडिटेशन से कैसे अपने आप को परिपूर्ण करेंगे। तो जब ये बात मन में थी तो मृत्यु का भय बिल्कुल नहीं था और यही लगता रहा कि भाई हमारा हिसाब किताब चुप हो रहा है। लेकिन 25 डेज़ हो गए हॉस्पिटल में ही थे और लीवर में पस होने से डॉक्टर ने सिरिंज से जब पस निकाला तो हमारी मामी सास थी, वो तो बेहोशी हो गई देख करके। और मुझे भी उस दिन इतना पेन हुआ, मैंने कभी भगवान से कुछ मांगा नहीं, बिना मांगे वो खुद मिल गया, माना सब कुछ मिल गया, ये मेरी फीलिंग थी। तो मैंने ये भी नहीं बोला कि मुझे मेरी बीमारी ठीक करो, लेकिन आज मेरे से सहन नहीं हो रहा, आप आ जाओ। और सचमुच ऐसी 2 उंगली जैसे माथे पर रखी और देखो भाग्य, मैंने ही बुला करके, मैं इधर उधर देख रही हूँ कि कौन है, हाथ नहीं पकड़ लिया, परंतु जैसे ही वो 2 उंगली रखी मेरी बॉडी इतनी हल्की हो गई और मैं उठ के बैठ गई।
और मेरे फादर इन लॉ को बोला कि बस अपन घर चलो, अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाती। और सचमुच उनको भी यही लगा कि आज पता नहीं, मुझे भी लग रहा है घर ले जाना है। और हम घर जा कर के एकदम परफेक्ट हो गए। 3 महीने तक का घर से बाहर नहीं निकले, लेकिन 3 महीने में इतनी वापस एनर्जी आ गई कि जैसे पहले से भी अच्छे हो गए। तो इस प्रकार से परमात्मा के साथ का अनुभव, परमात्मा के प्यार का अनुभव, जितना हम अपने जीवन में नियम संयम पर चलेंगे उतनी हमारे में सुस्ता आती जाएगी। और तो नॉलेज, मेडिटेशन, ज्ञान है तो मेडिटेशन है। तो ज्ञान को अपने जीवन में लाने के लिए, मेडिटेशन द्वारा शक्ति प्राप्त करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली अपने जीवन में जब धारणा होती है तो वो खुशी, आंतरिक खुशी, अतीन्द्रिय सुख जो गोपियों का गाया हुआ है वो हमारा ही है। क्योंकि भगवान से बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है और बिन मांगे वो सब मुराद पूरी करता है। और सदा हंसते रहना है, खुश रहना है, क्योंकि नॉलेज को यूज़ करना समय पर, जितना हम समय पर नॉलेज को यूज़ करेंगे ऑटोमेटिकली हम विजयी बन जाएंगे। क्योंकि ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है और वो ज्ञान ऐसा है, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर के पास जाने से ठीक नहीं होंगे। डॉक्टर जब हमको इलाज करेगा, वो दवाई लेंगे, नियम पर चलेंगे तो हम ठीक होंगे। इसी प्रकार खाली यहाँ आने से कुछ नहीं होगा, परंतु जो बातें हैं उसको अपने जीवन में धारण करेंगे तो उससे ही हमको शक्ति आएंगी। और मन बुद्धि संस्कार के बारे में जो बात मालूम पड़ी तो उसमें यही अच्छा लगा कि मन जो है वो घोड़ा है, लेकिन घोड़ा कभी सोता नहीं, खड़े रहता है सदा, बैठता नहीं है। तो हम भी मन जो है वो चक्की के पार्ट के समान है, स्थिर कर दो तो ऊपर का पार्ट फिरता है, नीचे का नहीं। ऐसे हमारे जीवन में भी मन बुद्धि संस्कार को ज्ञान से परफेक्ट बना करके अपने जीवन को परफेक्ट बनाकर चलना है। ओम शांति। सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। So just now we heard from Mrs. Durga how he really took help from the supreme power and how alaukic power, the soul power has increased and how all this happened. हम सोचते हैं कि मेडिसिन मतलब मेडिसिन लेना है, but the complete package of Brahma Kumaris is a combination of medicine and meditation. One of the participants from yesterday's residential retreat is Vimala Garu. Is she there? She is the principal of Navodaya Leadership Institute, Gachibowli. Now I request her to share her experiences, her association with Brahma Kumaris, and yesterday what she taught and what inspired her in a brief 2 minutes. Om Shanti. Good evening everybody, and I wish a very happy International Women's Day for all the women who are present over here. I am the in charge of training center, catering the needs of training Navodaya Vidyalaya staff. In that context, we used to fix one session for every training from Brahma Kumari's side to train the trainees how to keep themselves in peace of mind state. So in that way, I got introduced to the sisters of Brahma Kumaris, Sister Anjali. Earlier, Anjali sister used to come to take the sessions. Later on, Preeti Didi was coming, and coincidentally, Preeti is the ex-student of our Navodaya. By her motivation, it happened to attend 2 days Raj Yoga meditation residential retreat course on 29th February and 1st March. And this is my second session attending here, yesterday and today. And the moment I entered into the campus, virtually I witnessed the peace which is reflecting in each and every atom of the campus. And very aptly, the name kept as Santi Sarovar. Then I got impressed by the features of this Santi Sarovar, like Nishabdata, silence everywhere, Swachhata, spick and span neatness of the campus,
maintained. Niradambarata, simplicity and sacredness which were reflecting in the faces of brothers and sisters who have sacrificed their lives here for the upliftment of the society. Then there was a lot of confusion in between, who am I, whether body is important or soul is important. Such confusion was there. After attending the course, slowly some clarity I got. Body is mortal one and soul is immortal one. We have to give importance to soul and we have to realize ourselves, thyself. Then the karma philosophy, what we heard here through sisters, I used to question in myself, God, why you have created this many disparities in giving the births? Some people are blind, some people are physically handicapped, some people are mentally retarded. Then after hearing to that karma philosophy session, I came to know there is some checks and bills in the previous births. So according to the checks and bills, Bhagavan gives the births. So many such clarifications I got. Now I am in a position to even convey this message to my trainees also. Then this session, yesterday and today, so what is real empowerment? What is the importance of women? Yeah, if there is a happy woman in a family, the entire family will be happy. So very neatly, in a very clear manner, they explained us the faces of the woman and the role of the woman, how to maintain the balance of all the faces. So I am very much thankful to Brahma Kumaris. I am a just beginner. I just introduced the love and affection of Babaji, and it's not easy to realize him, to reach nearer to him. So in due course of time, I promise you that I will practice the meditation and I will try to go nearer and nearer to the Baba. Thank you. Have a nice day. Thank you very much, Vimala Garu. That's a very inspiring experience. And those who have not yet attended residential retreats, those who are just attending only couple of hours Sunday evening retreats, whenever you get the opportunity, I hope you will not miss this opportunity. Can I hope that? Excellent. Thank you so much. And now, today is International Women's Day, and the Women's Wing of Brahma Kumaris has organized a beautiful residential program, and Women's Wing is doing a lot of services to the society. And a sister of us, Sister Lakshmi, is coordinating these programs, and she is very active. She is now in charge of the Manikonda branch of Brahma Kumaris. She is very active, and we really see her and we become active. So active Sister Lakshmi is. So now I request Sister Lakshmi to brief us about the Women's Wing activities of Brahma Kumaris. Om Shanti. Thank you. First of all, Sumlata sister. So, మీ అందరూ తెలుగు వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నట్టున్నారు. అందరూ హిందీ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నారు. సో నేను తెలుగులో మాట్లాడతాను. ఈరోజు మహిళా దినోత్సవ సందర్భంగా మీ అందరికీ, అంతర్రాష్ట్రీయ మహిళా దినోత్సవ సందర్భంగా మీ అందరికీ చాలా చాలా శుభాకాంక్షలు. సో టుడే మహిళా దివస్ మనా రహే హే హమ్ సబ్. సో యాక్చువల్గా ఉమెన్స్ వింగ్ తరఫు నుంచి 8th November మీ అందరికీ తెలిసిందే, హోప్ హ్యాపీనెస్ హార్మనీ అని చెప్పి ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది మనం లాంచ్ చేయడం జరిగిందండి ఆంధ్ర తెలంగాణలో. దీని ప్రోగ్రామ్స్ని మనం కంటిన్యూగా చేయాలి అని చెప్పేసి కూడా ప్రాజెక్ట్ని తీసుకోవడం జరిగింది. సో ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అంటే ఆల్రెడీ ఉమెన్స్ అందరూ ఎంపవర్డే ఉంటారు. బట్ కాకపోతే ఏంటంటే వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఆ గుణం, దాన్ని వాళ్ళు రికగ్నైజ్ చేయరు, లేదా దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయరు, అలౌ చేయరు. కాబట్టి వాళ్ళు ఇప్పుడు సమాజంలో చాలా వీక్గా,
లేకపోతే అబలలు అని సబలలని అలాగా పిలువబడుతూ ఉంటారు. సో మనం అంటే ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎందుకు మనం గుర్తు తెచ్చుకుంటున్నాము అంటే యాక్చువల్గా ఒక్కరోజు ఉమెన్స్ డే అని కాదని, ఏ రోజు ఉమెన్ లేకపోతే లైఫ్ ఒకసారి ఆలోచించండి. అఫ్కోర్స్ మెన్ కూడా ఇంపార్టెంటే కాదని కాదు, బట్ మార్నింగ్ లేచిన దగ్గర నుంచి మీరు కళ్ళు తెరిచిన దగ్గర నుంచి కళ్ళు మూసుకునే వరకు ఎవరు కావాలి? सबसे ज़्यादा किसके साथ आपका इंटरेक्शन होता है? कौन किसकी ज़रूरत पड़ती है आपको? जैसे आप आँख खोलते हैं, जब आप सोए जब तक आपको किसकी आवश्यकता ज़्यादा है? हाँ, मॉर्निंग उठते चाय चाहिए, पानी चाहिए, हाँ, कुछ भी चाहिए, नाश्ता चाहिए, कुछ भी चाहिए, हमें वहाँ पर अपनी मम्मी हो, बहन हो, पत्नी हो, कोई भी हो, किसी भी रोल प्ले करते हैं तो हमको बहनों की ज़रूरत है. तो काफ़ी बहनें बोलते रहते ये वुमेंस विंग का है, वुमेंस विंग का. हमारा सबका ये विंग है ना? तो हम सब साथ मिल कर के अच्छे से करेंगे तो बहुत अच्छा सेलिब्रेट कर सकते हैं. और आप सब इस प्रोग्राम में आए इसके लिए भी बहुत बहुत थैंक्स. और 2 दिन से यहाँ पर रिट्रीट चल रहा है. సో 2 days రిట్రీట్లో జస్ట్ ఒక 2 hours ముందు వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేశారు అందరూ. ఫస్ట్ చాలామంది ఎందుకు రావాలి ఇక్కడికి, ఎందుకు వచ్చామా, అసలు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము అనుకుని వచ్చారు చాలామంది. బట్ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏం ఫీలింగ్ ఉంది అంటే అప్పుడే అయిపోయిందా, ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నాము అనిపిస్తుంది. అవునా కదా? కూర్చున్నారు కదా, ఎవరైనా శిబిర్ వాళ్ళు ఉన్నారా? 2 days అటెండ్ చేసిన వాళ్ళు. సో అంటే ఈ అట్మాస్ఫియర్ అనండి లేకపోతే ఇదనండి మనకి చాలా చాలా అవసరం అన్నమాట కదా. మధ్య మధ్యలో ఇప్పుడు కార్ ఎలా అయితే మీరు సర్వీసింగ్కి ఇస్తూ ఉంటారో అలా మన సోల్ కూడా సర్వీస్ అనేది చేయాలి కదా. బికాస్ నవడేస్ ఏంటి అంతా కూడా ఇప్పుడు సేవ్ ట్రీస్, సేవ్ ఎలక్ట్రిసిటీ, మోస్ట్లీ సేవ్ వాటర్ కదండి. ఇప్పుడు వాటర్ అనేది వాటర్ ఎవరి దగ్గర చాలా ప్రాబ్లం ఉంది, వాటర్ ప్రాబ్లమ్స్ మణికొండలో చాలా ఉంది. సో पानी की बचत करना है. हर चीज़ का बचत के लिए हम स्कीम बना रहे, लेकिन अपनी जो थॉट एनर्जी है उसकी बचत का स्कीम कोई बना रहे? थॉट्स ఎందుకంటే థింకింగ్ పవర్ ఈజ్ కాల్డ్ మైండ్. సో वेस्ट ऑफ थिंकिंग मीन्स वेस्ट ऑफ योर माइंड एनर्जी. सो एक दिन में हम कितने सारे व्यर्थ संकल्पों की रचना करते, इतनी एनर्जी हम लॉस करते. अब फिज़िकल स्ट्रेंथ लॉस हो गई, आप थोड़ी देर रेस्ट ले लीजिए, फिर से आप गेन कर सकते. अगर मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे आप या कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ भी डिस्टर्बेंस है, उससे आपको बाहर आने में कितना टाइम लगता है ना. और रोज़ हम क्या करते, हम एनर्जीज़ को क्या करते, आप गेन कर रहे हैं या लॉस कर रहे हैं? माइंड पावर को जितना होता उतना हम यूज़ ही करते जाते हैं, लेकिन उसको फिर से कैसे बनाना है उसका कोई स्कीम नहीं है. तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज अभी से आप अपने आप से एक प्रतिज्ञा लें कि हम अपनी थॉट एनर्जी को सेव कैसे करें, बचत करें. तो इससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन मिल जाएंगे, क्योंकि एज यू थिंक सो शैल यू बिकम, है ना. जैसे सोचोगे वैसे आप बन जाओगे, है ना. इसलिए हम अपनी सोच पर डिपेंडेंट है, तो अपनी सोच को बदलने से जग भी बदल जाता है. तो आज इस प्रोग्राम में आप सभी आए हैं, बहुत अच्छा लगा. ये जो चांस मुझे मिला है इसके लिए मैं कुलदीप दीदी को और यहाँ के सभी भाई बहनों के सपोर्ट के बिना हम नहीं कर सकते हैं. तो आप सबका भी बहुत बहुत थैंक्स. Thank you very much, Sister Lakshmi. Her thought, her divine thought to arrange a residential retreat for all the women is really applaudable, and so many people really took benefit from this. That's also very nice. Thank you very much, Sister Lakshmi, and also our respected Kuldeep Didi, who has really given consent and arranged for all these programs. Now, as our guests are almost arrived, our Didi ji also will be arriving in few seconds. We request again Kumari Nivedita to perform a welcome dance. Swagatam Suswagatam. Kumari Nivedita.
स्वागतं 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 सुस्वागतं स्वागतं शुभ स्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं शुभ स्वागतं 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 नवरस शोभित प्रांगणमुలకు సరస హృదయులకు స్వాగతం పూజ్యులు వ్యక్తులు కళా బంధువులు శ్రోతలందరికీ స్వాగతం సుందరం సుమధురం నేటి ఈ సంబరం శుభకరం దివ్య స్వాగతం 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 పారిజాత సుమ సౌరభాలతో మరుమల్లెలు విరజాజులతో స్వాగతం 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 ముఖ్య అతిథికి స్వాగతం మధుర భావాల మందారాలతో ఆదరపూర్వక వందనాలతో స్వాగతం 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 ఆత్మీయ అతిథులకు స్వాగతం పారిజాత శుభ సౌరభాలతో మరుమల్లెలు విరజాజులతో మధుర భావాల మందారాలతో ఆదరపూర్వక వందనాలతో మనోల్లాసము రసానందము మీకందించుట మా భాగ్యం మనోల్లాసము రసానందము మీకందించుట మా భాగ్యం స్వాగతం సుస్వాగతం స్వాగతం శుభ స్వాగతం 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 సని సగ సగ పగ పద నిద పద సని సగ పాద పదని సగ సని ద పద నిద నిద పగ ప సని ద పద సగ సుస్వరాల రస తరంగాలతో సుమధుర సుందర నృత్య హేళతో స్వాగతం 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 సుజనులందరికీ స్వాగతం సదస్యులందరి అంతరంగములు రసభరితమై ఊయలోగగా స్వాగతం 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 సుగతులందరికీ స్వాగతం సుస్వరాల రస తరంగాలతో సుమధుర సుందర నృత్య హేళతో సదస్యులందరి అంతరంగములు రసభరితమై ఊయలోగగా ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ మా స్వాగతం ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ మా స్వాగతం స్వాగతం సుస్వాగతం స్వాగతం శుభ స్వాగతం 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 Now we have one more colorful program before our respected Kuldeep Didiji, a beautiful skit on Nari Tu Nahari. నారీ నీవెప్పుడు ఓడిపోవు అన్నటువంటి థీమ్ తోటి ఒక బ్యూటిఫుల్ స్కిట్ తయారైంది. దోస్ ఆర్ రెగ్యులర్ మెంబర్స్ ఆఫ్ బ్రహ్మకుమారీస్ ఆర్గనైజేషన్ had really practiced this drama, giving a beautiful theme of saying that ये घर घर की कहानी है, हर घर में जो नारी है वो सिर्फ नारी नहीं है, वो देवी की मूर्ति है. आप मंदिर में जाते हो, जड़ मूर्ति की पूजा करते हो, लेकिन
नारी जो शक्ति है आपके घर में ही चैतन्य में है, वो कैसे घर के मामलों को सुलझाएगी। जो हमारी yesterday's topic harmony in relationships, yesterday our respected Kuldeep Didi has given so many beautiful tips as to how to make घर को स्वर्ग कैसे बनाना है। तो अभी हम देखेंगे स्किट में नारी तू नहारी। पार्टिसिपेंट्स हैं लीला बहन, नयनजोत बहन, ऋषिका बहन, परवीन बहन, बिदला बहन, रामकृष्ण भाई एंड ईश भाई। ये है शांति कुंज। जी हाँ, दरअसल इस घर के मालकिन का नाम शांति देवी है और उनके नाम पर ही इस घर का नाम शांति कुंज रखा गया है। तो आइए इस घर की मालकिन यानी कि शांति देवी से मिलवाते हैं। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। एक पीढ़ी आती है, एक पीढ़ी जाती है, बनती कहानी नई। क्योंकि सास भी कभी बहू सरस्वती, शीतल, अरे ओ शीतल, कहाँ चले गए? एक बार में तो कोई सुनता ही नहीं है। ये टीवी भी ना ऐन वक्त पर धोखा देता है। अब मेरा फेवरेट सीरियल का क्या होगा? आपने मुझे बुलाया माँ जी? नहीं नहीं, मैं तो शीतला माता को पुकार रही थी कि वो कहीं से प्रकट हो जाए। कब से आवाज दे रही हूँ, लेकिन यहाँ तो सबके सब कान में तेल डालकर रखते हैं। माँ जी, बात क्या है बताइए तो। दिख नहीं रहा टीवी कब से बंद पड़ा है? हाय मेरा फेवरेट सीरियल। लाइए रिमोट दीजिए। क्या? मैं तो आरती उतारूं रे, संतोषी माता की, मैं तो आरती उतारूं। माँ जी, आपने कोई गलत बटन दबा दिया होगा। ठीक है ठीक है। माँ जी, अब क्या है? कॉफ़ी बनाऊँ आपके लिए? हाँ हाँ, बनाओ बनाओ। और सुनो, पूरा कप भर के देना। जी माँ जी। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। ये दोपहर में कौन आ टपका? अरे पंडित जी आप? राधे श्याम, राधे श्याम। यजमान, यहाँ से गुजर रहा था, तभी मन में विचार आया कि आपसे मिलता चलूं। राधे श्याम, राधे श्याम। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। यजमान, घर तो बहुत ही बढ़िया बना लिया। सब आपकी कृपा है। वो तो है ही। आपके सुपुत्र नहीं नजर आ रहे हैं? वो तो सुबह सुबह ऑफिस चले गए। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, उस दिन आप मुझसे कुछ पूछना चाहती थी। दरअसल मैं थोड़ा जल्दी में था। क्या बात थी?
आज पूछ लीजिए, आज मेरे पास समय ही समय है। पंडित जी, कुछ लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि नारी नरक का द्वार है? यजमान, ऐसा तो कुछ मूढ़ बुद्धि के लोग ही कहते हैं। नारी की महिमा तो स्वयं भगवान करते हैं। नारी के त्याग तपस्या को कौन भूल सकता है? वो तो बहुत ही महान है। एकदम करेक्ट। तभी तो नारायण से पहले लक्ष्मी और राम से पहले सीता का नाम लिया जाता है। यहाँ तक कि अपने भारत को भारत माता के नाम से संबोधित किया जाता है। उसी प्रकार धरती को धरती माँ कहा जाता है, और ये इसलिए क्योंकि नारी त्याग तपस्या और वात्सल्य की जीती जागती मूर्त है, और इसीलिए घर घर में देवियों की पूजा की जाती है। वो नारी ही है जो दुर्गा है, वो नारी ही है जो सरस्वती है, और वो नारी ही है जो लक्ष्मी है। यजमान, ये बालिका कौन है? मेरी बहू सरस्वती। आहा, जैसा नाम वैसा ही ज्ञान। सौभाग्यवती भवा। पंडित जी, लक्ष्मी का अर्थ क्या होता है? लक्ष्मी, लक्ष्मी अर्थात धन्य धान से पूर्ण, धन की देवी। माँ जी, लक्ष्मी अर्थात जिसका एक लक्ष्य हो, अच्छे लक्षण हो, जिसके पास गुणों और संस्कारों का अपार खजाना हो। आहा, अति सुंदर। आपकी बहू ने तो 24 कैरेट गोल्ड की बात कह दी। राधे श्याम, राधे श्याम। अच्छा माँ जी, मैं कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। हाँ हाँ, बनाओ बनाओ। और सुनो, जरा देखना संतोषी कहाँ है। दुर्गा को भी बोल दो कि तैयार हो जाए। यजमान, ये संतोषी और दुर्गा, ये दोनों कौन है? ये दोनों मेरी बहन की बेटियां हैं। अच्छा अच्छा, अब मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। पंडित जी, जल्दी क्या है, आप भोजन करके जाइए। भोजन फिर कभी। वैसे आपकी बहू सरस्वती काफी ज्ञानी है। लड्डू तो बड़े ही स्वादिष्ट हैं। शुद्ध देशी घी के हैं। हाँ जी। राधे श्याम, राधे श्याम। बेसन के हैं। हाँ जी। राधे श्याम, राधे श्याम। लड्डू तो बड़े ही स्वादिष्ट हैं। वैसे भूख तो बिल्कुल नहीं है। इतनी जिद कर रही है तो 15-20 लड्डू बनवा दीजिए। मेरा काम चल जाएगा। जी जी, जरूर। अच्छा जजमान, हम चलते हैं। आपका कल्याण हो। हम फिर से मिलेंगे। राधे श्याम, राधे श्याम। ये धूप भी ना कितनी तेज है। मासी, आपने ही तो मना कर दिया। मैं छतरी ला रही थी। ओ बहन जी, आगे कुछ चोर उचक्के टाइप के लोग हैं, रुपया और गहने छीन ले रहे हैं। लाओ मुझे दे दो, मैं संभाल कर आपके घर तक पहुंचा दूंगा। तुम जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मासी, आप इन्हें नहीं जानती, ये इनका रोज का धंधा है। लगता है सीधी बात समझ में नहीं आई। वैसे तुम हो कौन? अपन अपना इंट्रो बाद में देगा। पहले तुम लोगों के पास जो भी कैश और गहने हैं मेरे हवाले कर दो, नहीं तो ये चाकू देखा है? हाँ हाँ, ऐसे चाकू से हर रोज सब्जियां काटती हूँ। तुम्हें क्या लगता है ये चाकू दिखाओगे और मैं डर जाऊंगी? देखो, जो मैं कहता हूँ वो करो, नहीं तो इस चाकू से। ब्रदर, ये चाकू है, बच्चों के खेलने की चीज नहीं। हाथ में लग जाए तो खून निकल आता है। क्या तुम
तुम क्या, शर्म नहीं आती तुम्हें? इतने हट्टे कट्टे होकर ऐसा काम करते हो। अरे मेहनत करो और सम्मान की ज़िंदगी जियो। मुझे नैतिक शिक्षा मत दो। अभी ये शिक्षा समझ में आ गई तो ठीक है, वरना मेरी मौसी ने 100 नंबर डायल कर दिया है। क्या क्या क्या? अरे दुर्गा, तुम्हें उसे डर नहीं लगा? उसके हाथ में तो चाकू था। मासी, आज के युग में डरने की नहीं, अपने हक के लिए लड़ने की ज़रूरत है। चलिए। किसका फोन था? अमन का। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? मौसी, हाँ बोलो ना, क्या हुआ? अमन ने जो पैसे शेयर मार्केट में लगाए थे वो सारे के सारे पैसे डूब गए और अब इन्वेस्टर्स को पैसे चुकाने के लिए हमें अपना बंगला बेचना पड़ेगा। ये तो बहुत ही बुरा हुआ है। मौसी, ये जीवन है और जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। बंगला बेचकर पैसे चुका देंगे तो कोई टेंशन तो नहीं रहेगा। और 1 BHK तो है ही हमारे पास मलाड में, हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। वो जगह छोटी है पर घर तो अपना है और समय का क्या है, कल फिर से हमारा हो जाए। अच्छा मौसी, मैं घर जा रही हूँ, पहुँचकर आपको कॉल करती हूँ। और बेटी संतोषी? मौसी, अब चिंता ना करें, आपकी संतोषी बिल्कुल ठीक है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे अभी तक आप लोग तैयार नहीं हुए? क्यों, कहीं जाना है? कल ही तो मैंने आपको बताया था ना। हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। मौसी, आज विमेंस डे है, वहाँ पर बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, ढेर सारी महिलाएं आ रही हैं। अरे फिर देर किस बात की? चलो चलो चलो। घर घर में होती है दिल की पूजा, घर घर में होती है दिल की पूजा। चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ, शिव शक्तियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पर। तो आप सब बताइए। पंडित जी प्रसाद सबको देने के लिए बोल रहे हैं। तो हमने देखा कि कैसे एक नारी दया, करुणा, ममता और प्रेम की पवित्र मूर्ति है और समय पड़ने पर दुर्गा और प्रचंड चंडी भी बनती है। तो इसलिए नारी मनुष्य की जीवन की जन्मदात्री है। तो लेट अस गिव अ बिग क्लैप अगेन टू दिस ब्यूटीफुल पार्टिसिपेंट्स, नारी तू नहारी। All these members are the regular practitioners of Raj Yoga meditation in Brahma Kumari's organization. Thank you very much once again. As we have already listened the experience of one of the participants who participated in the yesterday's residential retreat, yesterday and today's residential retreat. Now I request Mrs. Madhavi Garu, who is wife of ex-director Animal Husbandry, and she is associated with Brahma Kumari since 1 year, and she is also a businesswoman. Now she will share in a very brief banner in a couple of minutes what she liked in Brahma Kumari's preachings and what is her experience. నేను దీంట్లోకి వచ్చాను. ఈ జ్ఞానంతో భగవంతుడినే మనం సాధించవచ్చు.
ఏదో సాధించుట కాదు, భగవంతుడినే పరమాత్మ దగ్గరికే మనకు వెళ్తాము. మీరందరూ జస్ట్ ట్రైనింగ్స్ కావచ్చు, నేర్చుకున్నారు కావచ్చు. ఇప్పుడు దీనంతా ఈ జ్ఞానాన్ని మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే సాధన వల్లనే సమకూర్ణ ధరలోన అన్నట్టు ఎంత జ్ఞానాన్ని నేర్చుకోండి, ఆ యోగాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఏది కావాలన్నా అది జీవితంలో సాధించగలుగుతారు. మొట్టమొదటిసారిగా మనం సాధించగలిగేది సంతోషము, ఆనందం. ఈ కోరిక తీరితే ఈరోజు ఆనందం ఉంటుంది, రేపు ఇంకొక కోరిక పెట్టుకుంటాం. అవన్నీ అశాశ్వతం. కానీ శాశ్వతమైన ఆనందం దొరికేది ఈ మెడిటేషన్ ద్వారానే దొరుకుతుంది మీకు. అండ్ జ్ఞానము సాధన ఈ రెండు చేస్తూ ఉంటే సాధించేది లేదు. యూత్ స్పెషల్లీ సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు కనపడుతున్నారు నాకు, చాలా స్ట్రెస్ టెన్షన్లో ఉంటున్నారు. వాళ్ళు 18 hours వర్క్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళందరికీ స్మాల్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే 30 minutes, ఓన్లీ 30 minutes మీకోసం మీరు స్పెండ్ చేయండి. జస్ట్ సైలెన్స్లో కూర్చోండి, జస్ట్ సైలెన్స్. ఆ ప్రాక్టీస్ తోటి మీకు మెడిటేషన్ ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. స్టార్టింగ్లో బిగినర్స్లా కష్టం అనిపిస్తుంది, అలవాటు కావడం చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది. నెంబర్ ఆఫ్ థాట్స్, థౌజండ్స్ ఆఫ్ థాట్స్ బ్రెయిన్ నిండా వచ్చేస్తుంటాయి. కానీ వాటిని మీరు ఓడించాలి. ఓడిస్తే మీరు సాధించేది చాలా ఉంటుంది. ఎంప్లాయీస్కైనా చెప్తున్నాను, సాఫ్ట్వేర్, డాక్టర్స్, హౌస్ హోల్డ్ వాళ్ళకు ఎవరికైనా చాలా స్ట్రెస్ ఉంటుంది. దాన్ని ఓవర్కమ్ కావడానికి కావాల్సిందే మెడిటేషన్. ఆ మెడిటేషన్ మీరు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత సక్సెస్. నెక్స్ట్ ఇయర్కు గోల్ పెట్టుకోండి. ఈ March 8th కల్లా ఏం రీచ్ అవుతారో తెలుసుకొని మళ్ళీ మీరే ఇక్కడ మాట్లాడేటట్టు రావాలి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Thank you very much, Madhavi Garu, for your wonderful experience. I would request our Didiji to gift her our eco plant, Tulsi plant to her. Meanwhile, I request Dr. K. Usha Rani Garu, who attended this 2-day residential retreat. She is a retired Assistant Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan. నా పేరు కోగంటి ఉషారాణి. కేంద్రీయ విద్యాలయాల్లో అసిస్టెంట్ కమిషనర్ రిటైర్ అయిపోయాను. ఇప్పుడు సర్వీసు రోటరీ ద్వారా చేస్తున్నాను. అలాగే ఇలాంటి కార్యక్రమాలు అటెండ్ అవుతూ ఇంకా మనం సమాజానికి ఇంకే విధంగా ఉపయోగపడవచ్చు అనే దీనిలో ఈరోజు నేను మళ్ళీ ఇక్కడికి రాగలిగాను. ఎందుకు అంటున్నానంటే, నాకు ఒకసారి ఒక అద్భుతమైన అవకాశం వచ్చింది. బ్రహ్మకుమారీస్ని కనులారా వీణుల విందుగా ఒక 5 రోజులు ఎంజాయ్ చేయటం. అది ఎక్కడ మౌంట్ ఆబూలో. అది ఎలా జరిగిందంటే, ఒక అదృష్టం. మా ఆఫీసర్ గారు, మా కమిషనర్, నేషనల్ లెవెల్ డైరెక్టరు జముడు గారు ఒకసారి మౌంట్ ఆబూలో ఒక స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ బ్రహ్మకుమారీస్ వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ చూసి ఆశ్చర్యచకితులయ్యి, నేషనల్ లెవెల్లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఆయన హెడ్, మా కేంద్రీయ విద్యాలయాస్కి. ఆయన అక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్, వీళ్ళు చేసిన ప్రోగ్రామ్ చూసి వీళ్ళు చాలా ఆదర్శవంతమైన ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మనం కూడా ఇలాంటి మన ఆఫీసర్స్ మొత్తం కలిపి ఈ బ్రహ్మకుమారీస్ ఆశ్రమంలో ఆయన ఒక డ్రీమ్ అనమాట. మొత్తం టోటల్గా ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో అందరు ఆఫీసర్స్ ఒక్కసారి చేరే అవకాశం ఒక్క బ్రహ్మకుమారీస్ ద్వారానే మనకు కలుగుతుందని ఇంతవరకు ఎప్పుడూ జరగల. ఓన్లీ వన్స్ ఇట్ హ్యాపెన్. అందరు ఆఫీసర్స్ని, అందరు ప్రిన్సిపల్స్ని, అందరు అసిస్టెంట్ కమిషనర్స్ని 1500 మందిని పిలిచారు. ఒకే ఒక కాల్తో అందరూ ఎంతో ఉత్సాహంగా ఆ బ్రహ్మకుమారి మౌంట్ ఆబూకు వెళ్ళగలిగాం. ఫస్ట్ టైం మాకు అదే ఒక అవకాశం. మౌంట్ ఆబూని విజిట్ చేయటం, బ్రహ్మకుమారి చూడటం, శాంతి సరోవర్ కన్నా ఇంకా పెద్ద క్యాంపస్లను చూడటము, 20,000 మంది ఒక చాటు కూర్చొని చేసుకునే ప్రోగ్రామ్స్ కూడా అక్కడ మేము విజిట్ చేసాం. అలాగే 1500 మందిని ఆ జానకి దీదితో కూడా మాకు ఎంత ఆనందం వేసిందంటే, ఆ ఏజ్లో ఆవిడ 1500 మందికి మాకు సర్టిఫికెట్స్ పంచారు. అసలు ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళటమే ఒక అదృష్టం అనుకుంటే, ఆమె ద్వారా చేస్తూ మేము ఆ సర్టిఫికెట్ తీసుకున్నాం. ఇప్పటికీ అది ఒక మెమరీ. మా ఆఫీసర్ గారు ఒక చిన్న ఐడియా ఇంత పెద్ద డ్రీమ్ను సక్సెస్ చేసింది. అందరం ఎంజాయ్ చేసాము. అందుకని దాని మీద ఒక స్పెషల్ అభినవ సంబంధం ఏర్పడింది. అందుకని ఏ ప్రోగ్రాంలోనైనా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న కొటేషన్స్ మొత్తం నా దగ్గర ఉన్నాయి. నేను ప్రతి చైల్డ్కి మాట్లాడేటప్పుడు కానీ తప్పకుండా ఆ కొటేషన్స్ నేను చెప్తూ ఉంటాను.
కానీ ఇక్కడ మనం చేసేది ఏంటంటే చెప్పటమే కాకుండా చెయ్యాలి. అదే ముఖ్యంగా ఇవాళ కులదీప్ దీదీ ద్వారా కానీ ఇంకా జానకి దీదీ ద్వారా కానీ అందరూ సిస్టర్స్ ద్వారా కానీ బ్రదర్స్ ద్వారా కానీ నేర్చుకునేది ఏంటంటే మీరు చెప్పొద్దు, చెయ్యాలి. అది యోగా అవ్వచ్చు, ఒక మంచి మాట కావచ్చు, ఒక మంచి పని కావచ్చు, ఒక సర్వీస్ కావచ్చు, ఏదైనా సరే మీరు చేసి చూపించాలి. మనకు అక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు మహిళా దినోత్సవం, అంతర్జాతీయ మహిళ. అక్కడ మనకి దీదీలు అలాగే మదర్ తెరీసా ఆమె చెబుతూ ఉంటుంది, ప్రార్థించే పెదవుల కన్నా సేవ చేసే చేతుల మీద అంటారు. మరి నిజమే కదా, చేసి చూపించారు. అదే బ్రహ్మకుమారీస్లో ఉన్న ఈ సిస్టర్స్ ఈ బ్రదర్స్ చేస్తున్నది. అది చూసినాక ఎవరం కూడా ఇంకా దాంట్లో ఇంకొక క్వశ్చన్ చేసేది కానీ వేరే ఆలోచించేది ఏముండదు. మనం ఏం చేయగలం, అది చూడగానే మనం ఏం చేయగలం అనేది. సో నేను అలాగే స్కూల్స్కి అన్ని విజిట్ చేస్తూ ఇలాంటి ఆశయాలని వాళ్ళకి చెప్తూ రోటరీ అనే సంస్థ ద్వారా బ్రహ్మకుమారి వాళ్ళ ఆశయాలను కూడా ముందుకు తీసుకెళ్ళగలుగుతున్నాను. ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషన్లో ఇన్నేళ్ళు 35 ఏళ్ళు చేసి ఏంటి సాధించింది? ఒకే జీతం వచ్చింది, హ్యాపీ చేసాము, పిల్లల్ని పైకి తీసుకొచ్చాము, రికార్డులు వచ్చినాయి, రివార్డులు వచ్చినాయి, అవి కాదు. ఇంకా సొసైటీకి నేను ఎంతో చేయగలను. అది ఏం చేయగలను అనేది ఇలాంటి సంస్థల ద్వారా మనకున్న అవినాభావ సంబంధాన్ని, మనకున్న శక్తిని, యుక్తిని ఇంకా పంచగలం. సో ఆ ఆశయంతో నేను ఉన్నాను. అందుకని ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా ఇంకా 10 మందికి ఎలా చెప్పాలని ఈరోజు నాకు సంతోషం ఏంటంటే మా సిస్టర్ని కూడా తీసుకురాగలిగా. ఫస్ట్ టైం ఆ అమ్మాయిని మోటివేట్ చేసి నువ్వు కూడా రా, ఎంజాయ్ చేయి, నేను ఎంతో ఎంజాయ్ చేస్తాను ఇలాంటివి అంటే చక్కగా హ్యాపీగా పరిగెత్తుకొచ్చింది. ఈరోజు మాట్లాడటానికి తనకి మాట్లాడలేకపోయింది, ఆ ఆనందంలో తబ్బిబ్బైపోయి పొద్దున మాట్లాడమంటే అసలు మాటలు రావట్లా. నేను ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా నేను కూడా నాకు మాటలు తబ్బిబ్బైపోతాను. ఎందుకు? ఆనందం మనం ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యేదే డిఫరెంట్ ఉంటుంది. పొద్దున నిన్న కులదీప్ గారు మాట్లాడుతూ ఉంటే ఒక రోల్ మోడల్ మన ముందు కూర్చుని ఆ సారాన్ని, జీవిత సారాన్ని మనందరికి అలాగే చేతులు దోశలు పోసినట్టు అనిపించింది. మాటలు కాదు అవి, డైరెక్ట్గా హృదయానికి నాటుకుపోయే టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్. డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ గురించి చక్కగా వివరించారు. నేను పెద్ద లీడర్ అవ్వచ్చు, కానీ వంట వండటం అనేది ఎంత గొప్ప విషయం అని చెప్పారు మాకు. అందరికీ పంచుకోవటం, మనం ఏదైనా వండితే మనం తింటే ఆనందం ఉండదు, అందరికీ పంచినప్పుడు అదే చూపించారు మాకు ఆ టేస్ట్ని. అలాగే ప్రతి విషయంలో కూడా ఏ పని చేసినా డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ ఎంత గొప్పదో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అలాగే ఎంతోమంది మహిళలను చూస్తున్నాం ఈరోజు. ఇంత అద్భుతమైన ఒక కార్యక్రమం అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం రోజు ఆ దీదీ ముందు జరుపుకోవటం ఎంత గొప్పతనం. అది చాలా అదృష్టం అనుకుంటేనే ఇలా రాగలరు. నిన్న దీదీ ఇదే మాట అన్నారు, కొన్ని లక్షల మంది పాస్ అవుతూ ఉంటారు ఈ గోడ పక్కకుండా, కానీ ఎంతమందికి ఆ లోనకి వచ్చే అదృష్టం కలిగింది? మనలాంటి వాళ్ళకి లోనకి వచ్చి డైరెక్ట్గా అనుభవించటానికి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ని షేర్ చేసుకోవటం చాలా అదృష్టం. సో నేను కూడా అలాంటి అదృష్టవంతురాల్లో ఒకదాన్ని అనుకుంటున్నాను. మౌంట్ ఆబూ కాకుండా ఇక్కడ కూడా డెఫినెట్గా మేము ఈ కార్యక్రమాల్లో ఉన్న సారాన్ని ప్రజలకి పంచుతాము. తర్వాత ఎన్ని ఎక్స్పీరియన్స్లు అంటే చెప్పడానికి ఎన్నో ఉన్నాయి. పొద్దున ఆ మెడిటేషనల్ వాక్ అనేది ఒక అద్భుతమైనది. ఎన్ని కోట్లు పోస్తే మనం చక్కటి పచ్చిక గడ్డిలో సిస్టర్స్తో పాటు నడుచుకుంటూ వెళ్ళి ఆ సూర్యునికి ఒక నమస్కారం చేసుకుని ఈ ప్రకృతిలో మమేకమైపోయి ఈ పంచభూతాల గురించి నేర్చుకుని అనుభవించగలిగే అదృష్టం ఎంతమందికి వస్తుంది? పరుగులు ఉరుకుల లోకంలో ఎంత సంపాదించామనేది కాదు, ఎంత ఆనందం పొందామనేది. అది ఓన్లీ ప్రకృతితో మమేకమైనప్పుడే కలుగుతుంది. అది ఈరోజు మాకు ఫస్ట్ టైం నేను అంతే ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను. ఆ ఆకాశం, నీరు, గాలి అన్నీ మమేకమైపోయి మనం అసలు ఎక్కడ నడుస్తున్నామో తెలియదు, ఆకాశంలో తేలిపోతున్నట్టు. ఆయన విజువలైజ్ కూడా చేయించారు బ్రదర్ మాకు. వింగ్స్ 2 ఉన్నాయి అన్నారు. ఆ 2 వింగ్స్ ఎలా అంటే మనకన్నా చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి అన్నారు. నిజంగానే ఆ జీలండ్ ఎంతూజియాజం అనే 2 వింగ్స్తో మేము ఎగిరిపోయాము ఆకాశంలోకి. తెల్లటి మేఘాల మధ్య తిరుగుతూ ఉన్నాము. అంతటి అదృష్టం అందరికి కలుగుతుందా? ఎన్ని లక్షలు పోసినా అలాంటి ఒక అనుభూతి మనకు కలుగుతుందా? ఆ అనుభూతులను పంచుకోవటం కోసం తప్పకుండా మళ్ళీ దీదీ లాంటి వాళ్ళతో మనం హెల్ప్ చేస్తూ మనం వాళ్ళ ఆశయాలను ముందుకు తీసుకెళ్ళాలని నేను ఒక ఎడ్యుకేషనిస్ట్గా ఎంతోమంది ప్రజలకు మనం ఇంకా ఎన్నో విధాలుగా ఉపయోగపడవచ్చని, ఆ సిస్టర్స్ చేసే దాంట్లో ఒక చిన్న అణువు అంతా మనం కూడా చేయగలిగితే మన జీవితం కూడా ధన్యం అవుతుంది, సారవంతం అవుతుంది, సఫలం అవుతుందని కోరుకుతూ మీ అందరికి కూడా ఈ మహిళా ఇంటర్నేషనల్ విమెన్స్ డే తరఫున అందరికీ ఈ అదృష్టాన్ని మళ్ళీ మీరు అందరూ షేర్ చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ.
థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. వీరి అనుభవాలు వింటూ ఉంటే రికార్డ్స్ రివార్డ్స్ కాదు, స్పిరిచువల్ రివిలేషన్స్ ఇంపార్టెంట్ అని అందరికీ అనిపిస్తుంది కదా. అండ్ ఒక్కొక్కరి వాళ్ళందరి ఎక్స్పీరియన్స్లు 40 మంది ఎక్స్పీరియన్సెస్ వింటే ఇంకా ఇంకా చాలా మయమర్చిపోతూ ఉంటారు. సో అగైన్ అ సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ అండ్ హంబుల్ రిక్వెస్ట్ దట్ డోంట్ మిస్ ఎనీ సచ్ రిట్రీట్స్. when you have opportunity, definitely make time and have these beautiful spiritual experiences. Thank you so much for all those who shared their beautiful experiences. Now I request our respected Kuldeep Didi ji onto the stage. ఈ శుభకరమైనటువంటి ఈ రోజున ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని పెద్దవారి చేతుల మీదుగా దీప ప్రజ్వలనతోటి మనం ప్రారంభిద్దాము. So I request Kuldeep Didi ji on the stage. Also I request Hemlata Benji also on the stage for lighting of the lamps. I also request all the dedicated teachers of Brahma Kumaris to please come on to the dais to participate in the lighting of lamps. మాధవి గారు మీరు కూడా రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. ప్రసన్న అక్కయ్య గారు, రాధక్కయ్య గారు, వసంత్ అక్కయ్య, Madhavakya, who is a dedicated teacher in the Brahma Kumaris organization. She is the main background guide in directing the drama. प्रशांति बहन एंड पीछे जो बहनें बैठी है, सबसे निवेदन है ज्योति प्रज्वलन में आप आएंगे और हम सब अपनी आत्म ज्योति को प्रज्वलित करेंगे भगवान की याद से, और हम करतल ध्वनि से हम अपनी आत्म ज्योति को जगाते हुए जन जन का कल्याण करे, तू शिव की शक्ति है नारी, सदा रहेगी सृष्टि सारी, सदा रहेगी सृष्टि सारी। शिव की शक्ति जन जन का कल्याण करेगी, शिव की शक्ति है नारी. A real empowered woman who has filled herself with the spiritual power. शिव से शक्ति लेकर के सचमुच एक एम्पावर्ड वुमेन कौन बन सकते हैं? आप साक्षात आपके सामने देवियों को देख रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं जो ये शांति सरोवर बना है, या कहीं हमारी आदरणीय कुलदीप दीदी जी परमात्मा की आज्ञा से हैदराबाद पहुंच गए, और जब वो पहुंचे तो एक छोटे से कमरे में उन्होंने ये सेवा के कार्यक्रम शुरू किए थे. एंड नाउ यू कैन सी हाउ इट हैज़ वाइड स्प्रेड द स्पिरिचुअल सर्विसेज. कितने हमारे जैसे भाई बहनों को उन्होंने जीवन बना दिया है, कितने सारे प्रोग्राम्स दीदी अरेंज करती है, सेवाएं करती है. और आप देखेंगे इतने ये जो पत्थरों के बीच में बना हुआ है, कितना पत्थरों को तोड़ना, पत्थरों का ये ज़मीन को स्वर्ग जैसा बना दिया है सिर्फ दीदी जी की योग के कमाल से. वी ऑलवेज गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम आवर रेस्पेक्टेड कुलदीप दीदी जी. शी इज़ द इंचार्ज ऑफ हैदराबाद सब जोन ब्रांचेस. ऑल्सो शी इज़ डायरेक्टर फॉर शांति सरोवर. शी इज़ नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ स्पोर्ट्स विंग, एंड शी हैज़ गॉट ट्रेमेंडस वेरी सो मेनी अवार्ड्स ऑल्सो. एक एक फेदर जैसा उनके क्राउन में सजाते गए, जैसे कि भगवान महावीर विश्व सद्भावना पुरस्कार उनको मिला 2002 में, एंड 2004 में उनको मिला ग्रेट डॉटर ऑफ द सॉइल. 2008 में उनको मिला महारानी झांसी पुरस्कार. 2018 एंड 19 में 2 बार उनको मिला आइडियल टीचर अवार्ड, और रिसेंटली तेलंगाना गवर्नमेंट से भी उनको मिला एनर्जी सेविंग का भी अवार्ड, क्योंकि प्रकृति, पानी, करंट, कौन से लाइट्स को यूज़ करना है, हर छोटी बात पे इतना ध्यान रखती है. तो आई कैन से साक्षात एम्पावर्ड वुमन हमारे सामने है. तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आदरणीय दीदी जी से कि इस इंटरनेशनल वुमेंस डे पे अपना संदेश हम सबको सुनावे. ओम शांति.
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सभी महिला की बहुत महिमा सुन रहे थे। आपने छोटा सा नाटक भी देखा जिसमें नारी के अंदर कितनी शक्ति है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं एक समय था जब नारी को बहुत प्रकार से उसको कष्ट दिए गए, क्योंकि अशिक्षित नारियां होती थी। शिक्षा का उन्हें कोई अधिकार नहीं है, ऐसा समाज ने कुछ नियम बनाए थे। और कुछ शास्त्रों में भी, जैसे मनुस्मृति में भी नारी के लिए ये कहा गया कि ढोर गवार शूद्र पशु नारी चारों ताड़न के अधिकारी, अर्थात इनको मार मार के समझाया जाए। जैसे ढोलक को भी मारने से बचता है, गांव के लोगों को भी मारो तो समझते हैं, और पशु को भी मारो तो वो समझता है, ऐसे नारी को भी मार मार करके समझाना चाहिए। वो समय ऐसा था कि नारी की बहुत दुर्दशा हुई, और शंकराचार्य जी ने भी कहा कि नारी नरक का द्वार है। लेकिन 1937 में 36 में जब परमात्मा का अवतरण प्रजापिता ब्रह्मा के तन में हुआ, और इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जिसमें परमात्मा ने नारी सशक्तिकरण का एक लक्ष्य दिया है बहनों को कि नारी तू कल्याणी बन, सारे जगत का कल्याण कर सकती हो। आप नरक का द्वार नहीं, लेकिन नारी तो स्वर्ग का द्वार है। नारी चाहे तो नरक भी बना सकती है घर को, चाहे तो वो स्वर्ग भी बना सकती है, वो नारी के हाथ में। तो अभी भी आप गीत सुन रहे थे, जन जन का कल्याण करे तू शिव की शक्ति है नारी। तो नारी अपनी शक्तियों को कुछ समय भूल गई थी घूंघट में रख करके, क्योंकि नारियां भी घूंघट में थी तो उनकी शक्तियां भी घूंघट में थी। नारियों को कोई प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकार नहीं थे। नारी को दबाया गया, उसे बहुत प्रकार के कष्ट दिए गए, जिससे उनकी शक्तियों को वो पूर्ण रूप से भूल गई। सिर्फ हमें घर का काम करना है, समाज से डरना है, मर्यादाओं में रहना है, ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन उनकी जो आंतरिक शक्तियां हैं वो भी उन्होंने इस डर के मारे सारी शक्तियों को भी भुला दिया। अब परमात्मा हम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि आप वही नारी हो जिसकी महिमा में आज भी सारी दुनिया जो है शक्तियों की पूजा करते। नवरात्रि में आप देखेंगे दुर्गा को शक्ति का रूप बताया, सरस्वती विद्या की देवी, लक्ष्मी धन की देवी है, वैष्णवी विषय विकारों को मिटाने वाली देवी है, उमा उमंग उत्साह देने वाली देवी है। तो एक एक देवी के नाम में कुछ अर्थ भी है, और यह जो गुण और शक्तियाँ हैं हर नारी के अंदर है, लेकिन सुषुप्त अवस्था में उसे जगाने की आवश्यकता है। ये नारी कल्याण के लिए इस प्रकार के हम बहुत से कार्यक्रम करते, नारियों को एम्पावर करने का, क्योंकि ये भी नहीं कि नर को यहाँ इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा सतयुगी देवी देवताओं को कि नर नारी को समान दिखाया गया। ऐसा नहीं है कि नारी दासी है, नारी को सिर्फ पाँव का जूते के समान यूज़ करना है, क्योंकि आप देखेंगे हमारी भारत की ऐसी संस्कृति कि अगर पति मर जाए तो पत्नी शादी नहीं कर सकती है, लेकिन पत्नी मर जाए तो पति को अधिकार है, एक चप्पल टूटी तो दूसरी चप्पल ले सकता है। तो उसे एक चप्पल का ही रोल दिया गया समाज में, और वो पाँव दबाने के लिए है, पाँव के पास बैठना, पाँव के पास उसके पति की सेवा करना। लेकिन हमारे जो फाउंडर फादर हैं वो भी विष्णु के भक्त थे, लेकिन उस समय जबकि परमात्मा उनके तन में भी नहीं आए थे, उनको ये चित्र बहुत बुरा लगता था
कि विष्णु जी का पाँव लक्ष्मी दबा रही है, तो उन्होंने आर्टिस्ट को बोला इसको रिमूव कर दो, लक्ष्मी को दासीपन से हटा दीजिए, दोनों को समान रखो। मुझे ये पसंद नहीं है कि वो देवी बनने के बाद भी एक दासी का काम कर रही है। तो इसलिए हमारे पास अभी पहले आपने जब सब लाइन में खड़े थे, शिव शक्तियाँ आ गई, घर घर में होती है जिनकी पूजा वो देवियाँ आ गई। तो आप सब वही देवियाँ हो, वही शक्तियाँ हो। अगर हम शिव के साथ अपना संबंध जोड़ेंगे तो अपने अंदर एक आपको स्वमान, आपकी शक्तियाँ जागृत होंगी कि मैं नारी नहीं, मैं शिव शक्ति हूँ। नारी को अबला कहा गया कि इसमें कोई बल नहीं है, लेकिन परमात्मा ने कहा अबला नहीं सबला हो। आपके अंदर सब शक्तियाँ हैं, केवल उन शक्तियों को पहचानो और उसको कार्य में लगाओ। क्योंकि भारत की माताओं की बहुत बहुत वंदना होती है। आज आप देखिए हमारे भारत का हर कार्य, जो पहला नेशनल एंथम होता है वंदे मातरम, कौन सी वंदना के योग्य है, कौन सी माताएं हैं। हम वंदे मातरम माना हम सोचते हैं धरती की महिमा है, ये उन माताओं की महिमा है जिन्होंने भारत को स्वर्णिम बनाने में अपना योगदान दिया, जिन्होंने नारी उत्थान के लिए कुछ कार्य किए। तो अभी जागने का समय है, क्योंकि अभी तो नारी में जागृति बहुत आ भी गई है, स्वतंत्रता के साथ थोड़ा स्वच्छंदता भी आ गई है। क्योंकि आप अभी भी सुन रहे थे कि हमारे भारत को माता का नाम दिया गया, भारत माता की जय बोलते हैं। अब भारत माता की जय माना भारत में रहने वाली माताओं की जय जयकार है, जिन्होंने श्रेष्ठ कार्य किया है, जिन्होंने बलिदान दिए हैं। हमारे भारत में ऐसी नारियों ने जन्म लिया जो भक्त शिरोमणि मीराबाई है, झांसी की रानी है, जिन्होंने उस समय भी वीरता की गाथाएं अपने जीवन में ऐसी स्टोरीज बनाई जो आज पढ़ करके हम सशक्त हुए कि नारी अबला नहीं है, नारी में बहुत बहुत शक्तियाँ हैं। लेकिन वो शक्तियों को सहज लेने के लिए हम ईश्वर से योग लगाएं, जो सर्वशक्तिमान है, जो हम सबका पिता है, और वो हमें सर्व शक्तियाँ विरासत के रूप में देते। उसके लिए कुछ मेहनत नहीं है, केवल बुद्धि को जोड़ना है और वो शक्तियाँ प्राप्त करके हमें बुराइयों पर विजय प्राप्त करनी है। हमें लड़ने के लिए कोई शक्ति की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान हमें लड़ना झगड़ना युद्ध करना ये नहीं सिखाते। लेकिन वही नारी हूँ मैं जो शीतला देवी के रूप में भी, जिसका गायन है शीतला देवी माना। आजकल तो क्या है, वो शीतला देवी के दिन लोग ठंडा खाना खा के सोचते भाई ठंडा खाना है, एक दिन पहले बना के रख दो। शीतला माना जो अंदर से शीतल रहती है, जिसके संपर्क में आने वाली आत्माएं भी शीतल हो जाती हैं, उनके अंग अंग में शीतलता का अनुभव होता है। उनकी वाणी सुनने से मनुष्यों का मन शीतल हो जाए, ऐसी शीतला देवी बनो। आजकल तो ज्वालामुखी की तरह माताएं घर में ऐसा विद्रोह, ऐसा वातावरण बना देती हैं कि सबको डर लगता है। हम ऐसे डरावनी देवियां नहीं हैं, लेकिन हमारे दर्शन से सबका मन प्रसन्न हो जाए। क्योंकि मंदिर में भी आप देखिए, देवियों को देखते ही सब कितना प्रसन्न होते हैं, और उनका भी आप देखेंगे हमेशा हर्षित मुख दिखाते। कभी आपने देखा कि लक्ष्मी नारायण लड़ रहे, सीताराम लड़ रहे, राधा कृष्ण लड़ रहे, देखा है कोई चित्र? या ऐसा एक का मुंह उधर पूर्व, एक तो पश्चिम में है। आजकल तो ऐसा ही है घर का वातावरण। तो आप सोचिए हमारे बच्चे क्या सीखेंगे। हम बच्चों को, नारी ही बच्चे को चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, अच्छे मार्ग पर चलना सिखाती है। लेकिन क्या बोलना सिखाती है? सिर्फ बात करना सिखा दिया वो नहीं, लेकिन बच्चे को सच बोलना सिखाना चाहिए, क्योंकि माता प्रथम गुरु है हर एक की। आप देखेंगे बच्चा जब बोलता है, चलता है, माँ उसका बहुत ध्यान रखती है कैसे चलता है, सीधा चलता है या थोड़ा उसके चलने में ज़रा भी डिफरेंस लगता है तो हम डॉक्टर की सलाह लेते,
मेरा बच्चा टेढ़ा टेढ़ा क्यों चलता है। तो ये पाँव से चलने की चाल तो आपने देखी, लेकिन उसकी ओरिजिनल चाल कैसी होनी चाहिए, उसके जीवन की चाल ढाल कैसी होनी चाहिए, उसके जीवन में उसके बोल चाल का महत्व क्या है। क्योंकि हम देखे हैं बचपन से कि माताएं किस प्रकार से बच्चों को मिसगाइड करती। बच्चों में आपने बच्चों के गीत सुने होंगे, बच्चे मन के सच्चे, और उनके अंदर सत्यता के सिवाय कुछ नहीं होता है। आप देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, अगर ये कुछ चीज़ हमारे से टूट गई, कप टूट गया समझो, धोते धोते, तो हम क्या करते, अभी बड़े हैं हमारे से डांटेंगे ना, वो कप को जोड़ के रख देते ताकि हेमलता बहन आए, हाथ लगाए, इसका नाम लगे, मेरा नहीं लगे। दोष दूसरों पर लगाना। और बच्चों को सिखाते हैं, क्योंकि आजकल तो आपके मोबाइल पे पता चल जाता है ना, आपको उठाना है नहीं उठाना है, आपकी मर्जी है ना। किस व्यक्ति को आप अवॉइड करना चाहते, नहीं उठाते या ब्लॉक कर देते। पर जब लैंडलाइन में पहले ज़माने में कुछ भी पता नहीं चलता था किसका फ़ोन आया, पर जब हमको डर होता था कि फलाने का फ़ोन ना हो, बच्चे को बोलते उठा दे, और अगर फलानी आंटी का हो ना तो बोल देना मम्मी घर में नहीं है। तो बच्चा इतना सच्चा होता है, वो बोलता है मम्मी कह रही है, मम्मी घर में नहीं है। फिर उसको एक थप्पड़ पड़ता है, हाँ, कि तुमने ऐसा क्यों बोला, तेरे को बोला था झूठ बोलने के लिए, तूने सच क्यों बोला। फिर बड़ा होकर जब वो झूठ बोलता है, फिर भी एक थप्पड़ मिलता है उसको कि झूठ क्यों बोलता है। वो बोलता है मम्मा जब मैं सच बोला था तभी भी थप्पड़ खाया, झूठ बोला तो भी थप्पड़ खाया, मुझे क्या बोलना है वो मुझे बताओ। तो क्या बोलना है वो हम लोग अभी तक नहीं सीखे। बोलना तो आता है सभी को, बहुत अच्छा भी बोल सकते, वर्स्ट वर्ड भी हमारे मुख से आ जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस समय पर बोलना है, वो आज तक बाल सफ़ेद हो गए सभी के, लेकिन नहीं सीख पाए। कोई बच्चा नहीं बोल सकता है, उसको स्पीच थेरेपी के लिए भेज देते, कोई थेरेपिस्ट उसको सिखा देगा कैसे बात करना है, उसकी आवाज़ आ जाए, उसकी बात आ जाए। लेकिन ऐसे बोल बोले जो अनमोल वचन हो जाए, ऐसा मेरे बच्चे को बोल सिखाऊं, ऐसी चाल चलन बनाऊं जिससे उसके चरित्र का गायन भागवत में जैसे श्री कृष्ण का, रामायण में राम का है, क्या हमारे पास ऐसे चरित्रवान बच्चे नहीं हो सकते। तो ये माता पर डिपेंड करता है कि उस बच्चे के जीवन में हम क्या भरें। क्योंकि हम स्कूल में पढ़ते तब छोटी छोटी स्टोरीज़ के साथ हमें मॉरल सिखाया जाता था। एक माँ बच्चा जो है चोरी करता था तो उसको शाबाश करती थी, अच्छा है अपनी स्टडी के लिए बुक्स भी चुरा के ले आता है, पेन भी ले आता है, रबर भी ले आता है, सब कुछ बहुत अच्छा है। बड़ा होने के बाद बहुत बड़ा डेकोइट बना, और जब वो पुलिस के हाथ में आया, उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई, तब उसको अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने बोला मुझे मेरी माँ से मिलना है। जब माँ उसके समीप आई, सोचा शायद मेरा बच्चा मुझे इतना प्यार करता है, उसकी अंतिम इच्छा मुझसे मिलने की है। उसने अपनी माँ का नाक और कान काट दिया। तो पूछा गया क्यों काटा, क्योंकि अगर ये माँ मुझे अच्छा शिक्षण देती तो मैं ऐसा डेकोइट नहीं बनता था, मैं एक आदर्श मनुष्य बनता था। इसी ने मेरी बातें सुन करके और मुझे चोरी के लिए प्रेरित किया। समाज में इसकी भी नाक कटे, इसलिए मैंने नाक काट दिया इसका। तो इसलिए हम अपने बच्चों को जैसा बनाएंगे, क्योंकि हम कहते हैं स्कूल में जब बच्चे पढ़ते, आज का बच्चा कल का नेता बनेगा। कैसा नेता बनेगा जब आपकी नीति ही ठीक नहीं है, नियत भी ठीक नहीं है। इसलिए आज आप देखिए राजनीति, धर्म नीति सब किस दुर्दशा में है। धर्म के नाम से भी लोग डरते हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी वारदातें होती हैं गुरुओं के साथ। अनेक गुरु जेल में हैं, तो लोग सोचते धर्म क्या है, धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो चुके, तो धर्म का नाम भी बदनाम कर दिया। धर्म का मतलब ये नहीं हम हिंदू है मुस्लिम है, धर्म माना हमारे जीवन की श्रेष्ठ धारणाएं जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में सिखाई जाती हैं कि आहार भी शुद्ध हो, व्यवहार भी शुद्ध हो, और साथ साथ अपने जीवन में भी पवित्रता को अपनाएं, सद्गुणों को अपनाएं। जितना हो सके
ये विषय विकारों से अपने जीवन को दूर रखे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो हमारे जीवन की सब कलाओं को, गुणों को नष्ट कर रहे हैं। तो इसलिए ये विकारों से हमें नफरत करनी है, न कि मनुष्यों से। तो इसलिए यहाँ पर एजुकेशन, हमारी एजुकेशन विंग के द्वारा भी बच्चों को जो है स्कूल्स में, कॉलेजेस में किस प्रकार से उनको ये फिर से मॉरल वैल्यू सिखाई जाए, स्पिरिचुअल एजुकेशन दी जाए, ताकि फिर से हमारा भारत ऐसा आदर्श गुरु बने सभी के लिए, जो सभी भारत के द्वारा ही ये अपनी भारत की संस्कृति को पहचाने, फिर से हमारा भारत स्वर्ग बने। उसमें हम सबका योगदान, केवल नारियों का नहीं लेकिन भाइयों का भी चाहिए। नर नारी दोनों को परमात्मा समान बना रहे हैं, दोनों को समानता का अधिकार दे रहे हैं। इसलिए आप सब शिव शक्तियाँ अपनी शक्तियों को जागृत कर समाज को सुंदर और श्रेष्ठ बनाने के निर्माण के कार्य में योगदान दें। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का, इतना अच्छा संदेश सुनाया कि इस धर्म भ्रष्ट समय में नारी कैसे शिव की शक्ति बन करके श्रेष्ठ कर्म सिखाती है और हम अपने घर को भी कैसे स्वर्ग बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी का। अभी हम हम अभी ये कार्यक्रम के लास्ट पे पहुंच गए हैं। हमारे बीच आदरणीय हेमलता बहन जी है। आज हम ये कार्यक्रम को परमात्मा को याद करने के बिना कैसे हम यहाँ से जा सकते हैं। इतने अच्छे भगवान ने हमको ये सब दिया है, कितना अच्छा हमको आगे बढ़ा रहे हैं। तो उस परमात्मा की याद में राजयोगा मेडिटेशन को गाइडेड मेडिटेशन से लीड करेंगे आदरणीय हेमलता बहन जी, जो कि मुजनजाही मार्केट में जो हमारा लाइट हाउस सेंटर है उनकी संचालिका है। और from the past 52 years, Didi ji is practicing this Raj Yoga meditation and associated with Brahma Kumaris since her childhood. Hemlata Bain ji. ओम शांति। हम सब आज यहाँ उपस्थित हुए हैं अपने जीवन में शक्ति जागृत करने के लिए, और वो शक्ति शिव की शक्तियाँ और शक्ति प्रदान होगी योग के द्वारा। हम सब शरीर नहीं, शरीर नाशवान है, शरीर पंच तत्वों का पुतला है। ये शरीर हमें यहाँ मिलता है और यहाँ ही
पंच तत्वों के अंदर विलीन हो जाता है। शरीर विनाशी, इस शरीर को चलाने वाली आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, इस शरीर में भ्रुकुटी के मध्य मस्तक के बीच एक सितारा भ्रुकुटी के बीच चमक रहा है। सितारा लाइट, माइट, शक्तिवान, सूक्ष्माति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, जिस सितारे को विनाशी नयन देख नहीं सकते, और ये सितारा चैतन्य सितारा जिसको हम इन आंखों से देख नहीं सकते, और ये सितारा हमारे शरीर को चला रहा है। ये शरीर विनाशी है, और ये चैतन्य आत्मा रूपी सितारा जो प्रकृति के मध्य विराजमान है, ये अजर, अमर, अविनाशी है। और इस सितारे का घर सूर्य, चांद, तारागण से पार शांति धाम, परम धाम, पार ब्रह्म, जहाँ हम सर्व आत्माओं के पिता परम आत्मा का घर है। अब मैं आत्मा अपने ओरिजिनल घर पार ब्रह्म अपने पिता के सानिध्य में पहुंच चुकी हूँ। मेरा पिता शांति का सागर,
सुख का सागर, प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर, सुख का सागर, उसके सानिध्य में रह उसकी सर्व शक्तियाँ मुझ में समाहित होती जा रही, समाहित होती जा रही। सर्व गुण मेरे में समा चुके हैं, मैं सशक्त हो चुकी हूँ। सर्व गुण मुझ आत्मा में भरपूर हो चुके हैं। मैं शक्ति स्वरूपापन अब मैं आत्मा अपने घर परम धाम से इस सृष्टि लोक में, इस भूमंडल में फिर से इन शक्तियों को अपने अंदर लेकर 5 तत्व रूपी शरीर में प्रविष्ट हो भ्रुकुटी के बीच मैं पहुंच चुकी हूँ। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा, शक्ति स्वरूप आत्मा, शक्ति स्वरूप आत्मा। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। करतल ध्वनि से बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे सबके, सब कुछ, फॉर एवरीथिंग व्हाट दीदी हैज डन फॉर अस। ओम शांति। नवीन जी का भी और अपनी सभी बहनों का, माधवी बहन, वसंता बहन, सुमलता बहन, हर एक बहन जो आए हैं इस प्रोग्राम में और मेरे साथी बन कर के, मेरा साथ दे करके हमको इतना अच्छा सा गाइडलाइंस भी दिए और अच्छे से हम सबका सहयोग से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है। रश्मिता बहन, सभी बहनें हैं और भाई, और ख़ास करके वंशी भाई। अभी आप देख रहे ये सब जो डिज़ाइनिंग है बैनर्स का या इस प्रोग्राम की रूपरेखा का भी, हर चीज़ में वंशी भाई भी आगे नहीं आते लेकिन पीछे से सब हमको सपोर्ट करते रहते हैं। और दुर्गा बहन, लीला बहन जो भी स्किट बनाए हैं उन सभी का, और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आप सबका, क्योंकि आप हैं तो शोभा है ना। आप नहीं हैं तो शोभा नहीं है। तो आप सबके वजह से आज का ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से हो गया है। आई होप आगे भी इससे भी बहुत अच्छे से अच्छे हम कर पाएंगे और करते रहेंगे सब मिल करके। हम मोस्टली जून जुलाई में नेक्स्ट जो वुमेंस रिट्रीट का हम सोच रहे थे, क्योंकि अभी जो फर्स्ट रिट्रीट है ये तो एक बार शुरू करेंगे तो थोड़ा आइडिया आता है कि कैसा करना है आगे चल करके। तो 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स के बाद प्लान करेंगे। और जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया उनका नंबर से, अगर और कोई भी एनरोल कराना चाहते हैं तो आप वुमेन विंग के नाम से आप एनरोल करा दीजिए शांति सरोवर में किसी से भी, फिर आपको वो उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। सो दैट जो प्रोग्राम्स चलते रहते हैं वुमेन्स विंग के कार्यक्रम के हिसाब से वो आपको मैसेजेस मिल जाएंगे। और सबको तहे दिल से वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।